आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दीजिए, हमको पूरा चेक करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और वो डिसीज को भी लेटर दिया हुआ है सारा। सारे प्रोजेक्ट सबके सामने डिस्कस करवाते हैं ताकि हॉस्पिटल को भी, स्कूल को भी, और PWD बना रहा है, UD बना रहा है, और ये अलाइनमेंट जगह कर देते हैं, फिर जगह प्लान के बाद हाँ कर देते हैं। सर मैं भी आगे जल्दी बताता हूँ बच्चे को कितना है, हम साथ में थोड़ा बहुत रखा होगा, ये सारा काम अच्छे से करवाना है आपको। इसका मतलब ड्यूटी होना चाहिए और थोड़ा लोकल कल्चर का भी ध्यान रखें। जैसे गेट बनाओ आपने, ऊपर वायर लगा हुआ, बाकी वायर नहीं उसको डालो, बहुत बुरा है। पानी अच्छा बंद हो रहा है अभी, हम नीचे से प्लान करके इसको तो खाली रखें। हाँ थोड़ा बहुत सुंदर से अच्छा बना कितना पुराना ये सर देखिए पूरा प्लास्टिक से बनाया है इसको। प्लास्टिक की बोतल को काट कोक का के, बोतल। हाँ सर 2 बोतल जोड़ के ढक्कन लगाकर उन्होंने इसमें ये प्लास्टिक की तरह प्रेस किया। अच्छा काफी हाँ बहुत अच्छा है मैडम। ठीक है, आपका नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, इसके टेंशन नहीं। गैस पकड़ ये MDM वाला है। to join us for this, all the HODs to attend this meeting and to contribute in the development of education sector, which is the most vital sector for any nation, for any state, for any district, to truly develop to its potential. A very good morning, Manino. Now we shall begin the felicitation of dignitaries by the Department of Education, Tirap District. Of Education, the man of Arunachal Pradesh, Shri P.D. Sonaji. Now we shall felicitate Advisor to Honorable Minister of Education, Shri Muchu Michiji. सर इधर थोड़ा पहले पहन लेता हूँ। मोड़ दे। Next, we shall felicitate Learned Commissioner of Education, I.S. Amjad Takji. तालियां रुकना नहीं चाहिए, ladies and gentlemen. Next, we shall felicitate Director of Secondary Education. Okay, DDSC Madam of Tirap District is here to represent. प्लेस लोग करें मैम। ठीक ठीक। We shall felicitate Deputy State Project Director, ISSE. To do the honors, I would like to request DDSC ma'am. Ladies and gentlemen, please put your hands together. सर्टिफिकेट और भी है ना क्या? Next, we shall felicitate Public Relation Officer, that is PRO. Now we shall felicitate officer on special duty. Police, please, please.
now we shall felicitate the media persons. That is, first we shall felicitate our Honorable MLA, Bodoria Bogapani constituency, Shri Wanglin Lowamdokji. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Honorable MLA, Bodoria Bogapani constituency, Shri Wanglin Lowamdokji. We shall felicitate Honorable MLA of Khonsa East constituency, Shri Wanglam Saminji. Ladies and gentlemen, put your hands together for Honorable MLA Khonsa East, Shri Wanglam Saminji. A PowerPoint presentation by DDSC Madam Srimati K.C. Lowangchaji. PowerPoint presentation regarding the education scenario of Iraq district. Now, first let's have a look at the status of schools in Iraq district. Primary schools 70. Government primary schools 70, private schools 11, upper primary schools 28, private schools 8 or 0 enrollment. की वजह से और it was closed down for more than 2 years, 3 years nearly. So I got it shifted to New Sumsi Kothar village because it was simply lying closed down. So I shifted it, got it shifted unofficially to Sumsi Kothar, and there the people are very much interested. They have done everything. They have renovated the school also and the teachers' quarters also, and they have cleaned up all the compound, and they have provided all the basic necessary things for the school. And so now I wish that I beg you, sir, to help me to get it shifted officially. And for that, ठीक है, आप proposal भेज दीजिए मैडम, हम करवाएंगे. Observation regarding the government residential school at Sumsi Pathar. Two of my schools from my constituency are also included in that. Whereas Sumsi Pathar is a different constituency. It comes under Namsam. And the two schools of Pansumthong and New Laptang are in Bodria, my constituency. So how can the different constituencies be clubbed together in one? शिफ्टिंग का आया था ना नहीं, वो duty है ना. न्यू हम लोग तो रेजिडेंशियल शिफ्टिंग का आया था ना उसमें हमारा constituency कोई और एक residential school करा दीजिए. आपको कोई है कोई बता है यहाँ पे टेकर सर, then we will take it up. अगर बच्चे no, constituency wise be divided for our convenience to work out. विलेजेस विल ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट and ये तो होना ही है तो उसको you have to overcome that तो डालते रहते दो है कोई नहीं चाहेगा कि मेरा गांव का स्कूल ये न्यू लामलो तो सबसे पत्थर वाला जो जीआरएस रेजिडेंशियल स्कूल शिफ्टिंग का जो इसको प्रपोजल थोड़ा सा वो कौन सा ये कर स्टेज दीजिए, में है इसमें प्रपोजल अप्रूव हो गया तो ना हमारा constituency का जो स्कूल है उसमें क्लब कर दीजिए. हम तो भेज दिया था Mostly sir in the primary sector we have private schools mainly because मेरे rural areas में sir government में single teacher school होता है sir 5 classes एक teacher नहीं पढ़ा पाता है तो parents what we have also seen prefer कि वो private में चले जाएं क्योंकि बच्चे को उन्हें लगता है कि पढ़ने में बेहतर होती है sir. Next slide. उसमें जैसे अपर प्राइमरी में कोई होता है 1 से 8 तक sir. कोई होता है 6 से 8 वो थोड़ा क्लासिफाई करें ठीक ठीक सर हम नहीं देंगे सर. and for your secondary also they are like सर फुल प्राइमरी प्लीज आप थोड़ा पीछे देखिएगा. हाँ सर प्राइमरी में हमारा 2258 का पॉपुलेशन है. देन वी हैव 1577. सेकेंडरी में गैप है वो सर पास परसेंटेज की वजह से है क्योंकि 10th में सब पास नहीं होते तो वो गैप उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है सर. ये सर हमारा सीबीएसई का लास्ट रिजल्ट था जिसमें हमारा 22-23 का जो था 49.66 था 10th का, बट 23-24 में अनफॉर्चुनेटली दैट फेल टू 45.96. अगेन साइंस में 12th में ह्यूमैनिटीज में 62 वो सर इंक्रीज हुआ हमारा 69 में एंड ऑलमोस्ट स्टेबल रहा 79 के.
नेक्स्ट स्लाइड। सर ये आलू बोर्ड का हमारा 5th एंड 8th का जो बोर्ड होता है उसका रिजल्ट है सर। उसमें सर ऑलमोस्ट स्टेबिलिटी ही है हमारे 2023 में। नेक्स्ट स्लाइड। ड्रॉप आउट का सर हमारा जो टोटल ड्रॉप आउट रेट है वो 2.41 था और उसके बाद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का सर 2.60 है सर। टोटल एनरोलमेंट के हिसाब से सर 140 चिल्ड्रन रेगुलर एंड 151 चिल्ड्रन सर हमारे ओन है। हमारा जो स्कूल में जो कॉन्स्टिट्यूंसी का जो स्कूल है हमारा फीडर स्कूल हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में रहना चाहिए। सर आपके में सर हम लोग ये पानीपुरिया वाला इधर ही है ना? इसको थोड़ा देख सर लीजिए। मैं रिवर्क कर दूँगी सर। मैं तो रिवर्क पहले रिव्यू कर हाँ मैं रिव्यू करती हूँ अच्छा सर। इसके बाद सर ये हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है सर। आगे सर एडिशनल क्लासरूम्स हमें 139 चाहिए कि AC वाइज सर हमने बताया है। सर अगर आप क्लिक करेंगे तो हम स्कूल वाइज बता सकते हैं अगर आप चाहेंगे किसी का देखना। G+ बिल्डिंग सर हमें 4 चाहिए। प्रिंसिपल हेडमास्टर रूम सर 19 चाहिए। 31 साइंस लैब्स चाहिए सर। आर्ट एंड कल्चर रूम्स 27 चाहिए। स्टाफ कॉमन रूम्स 21, कंप्यूटर रूम्स 26, असेंबली ऑडिटोरियम रूम्स 27, प्लेग्राउंड्स 14, बॉयज हॉस्टल 17, गर्ल्स हॉस्टल सर 8। ये हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है सर। नेक्स्ट सर ये हमारी बाउंड्री वॉल्स की बाउंड्री वॉल्स Can I say a few, एक दो regarding this Kapo secondary school, one of the major concerns was that वो जो हाईवे जो कंस्ट्रक्ट किया है उसमें काफ़ी हॉस्टल स्कूल बिल्डिंग को भी नष्ट हुआ है तो दूसरा जगह में शिफ्ट किया है द सेम विलेज सेम विसिनिटी में। तो वहाँ में जो गर्ल हॉस्टल जो भी हमारा जो SIDF से दिया है वो वहाँ गर्ल हॉस्टल में चल रहा है उस क्लासेस है अभी फिलहाल। आपका स्कूल के बारे में थोड़ा बताना। So in our school, primary section 1 to 5, class 1A, in class 2 7, class 3 7, class 4 4, class 5 1, and from the class 6 up to 10, class 6 7, class 7 9, class 8 7, class 9 24, and class 10 29. Important words from Honorable Minister of Education, Shri Pasan Gorji Sonaji. Good afternoon, everyone. Honorable MLA, Sri Nagamji, and my friend, Honorable MLA, Sri Savinji, and my advisor, Honorable MLA, Sri Muchumukiji, Commissioner, Deputy Commissioner Madam, and all the head of departments of Tirap district, and the CPOs and all other people who have participated in this follow-up of touching the children. So first thing first, I just want to reiterate and let you know that we are on a tour to, talk about the larger picture. But it's always a practice that when a minister comes to your place, everyone comes with a memorandum, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, तो बहुत ही ज़्यादा छोटा चीज़ हो गया। तो हमको क्या है कि we are talking about something much bigger than that, and how you are going to contribute towards the efforts and the process and the vision which we are trying to envisage. And under the leadership of our Honorable Chief Minister, जिस तरीके से उसने बताया कि the way education department is being abused all these years, and how we get this whole problem sorted out in this coming years. तो उसको लेके एक कमिटमेंट है कि एजुकेशन सिस्टम को दोबारा आपको किस तरीके से ट्रैक पे लेके आना है। तो फॉर दैट रीजन वी आर हियर ऑन अ टूर टू अंडरस्टैंड व्हाट आपको क्या समझ में आया, आप लोगों ने क्या किया, एंड व्हाट आई हैव फेल्ट आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस। सरकार हमेशा से चाहता है कि अच्छा ही करेंगे, लेकिन सोच और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन में एक गैप हो जाता है कभी। व्हेन यू ट्राई टू फॉर्मुलेट ए पॉलिसी, अब वहाँ बैठ के ईटानगर बैठ के वहाँ पे ऑफिस का 4 दीवारी में बैठ के फॉर्मूला बनाएगा या पॉलिसी बनाएगा, तो इट्स वेरी लाइकली दैट इट विल फेल।
until and unless you try to understand the real problem, grassroots में क्या है नहीं है और लोगों का क्या सोच है, किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि every region, every place, every area has a different challenge, different kind of problems, different kind of aspiration, different kind of expectations. तो उसको लेके what we did after we assumed as a minister, तो हमने वही बोला था कि conclave में we will try to engage all the stakeholders, right from the CBOs, the NGOs, and all the associations, the student organizations, तो ताकि उनसे समझे कि क्या है क्या नहीं है। तो बात हम लोग वहाँ तक सीमित नहीं रखा, क्योंकि ये हो गया आप ईटानगर में आके अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ईटानगर में आप आके बात कर रहे हैं, तो लेकिन ग्रास रूट में, ग्राउंड लेवल में क्या है उसको अभी हम लोग पता करने के लिए आया। और जो हम लोगों ने 3 दिन का जो एक डिस्कशन किया उस पर आपका अभी तक क्या, किस लेवल तक आपका अप्रोच आया है, तो इट हैज़ टू बी वेरी प्रैग्मेटिक, सबसे पहले बात है। तो उसको लेके तो अभी देख रहा है, तो अभी आवर जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम चांगलांग। तो चांगलांग में भी हमारा जो मीटिंग हुआ था, लाइक वन बाय एडवाइजर सेड, इट वाज वेरी एनकरेजिंग। पीपल, द CBOs and all the stakeholders were very positive about the thought process which we have tried to embed in them. तो उसको लेके तो अभी यहाँ भी हम लोग सुन रहा है जो जिस तरीके से आप लोगों का अप्रोच है, और खास करके DC मैडम को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा जो कन्वर्जेंस के बात बताया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही देखता रहेगा कि कब करेगा ये आके एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन टचेस एवरीवन्स लाइफ, तो एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि अगर जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा तो बाकी आप जितना भी मेटेरियल डेवलपमेंट हो जाए तो कोई फायदा होने वाला है। तो वी ऑल मस्ट गिव प्रायोरिटी टू एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो हमारा ऑनरेबल MLA है, तो उनका तरफ से भी सुना, ही इज बीन डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द एजुकेशन, और हमारा नौरंग साहब ने भी अपना तरफ से किया है। तो करके भी फिर भी देयर इज लॉट ऑफ गैप, तो उसको किस तरीके से फिलअप करना है आपको। तो इसलिए मैं असेंबली में भी मैंने यही बोला था कि जब भी हमको कुछ आगे करने जाना है, तो व्हेन आई एम लीडिंग द कॉज, व्हेन आई एम लीडिंग द मूवमेंट, तो मैं खुद ठीक नहीं होगा तो मैं किसको बोलूँगा, बोला ये तो लेक्चर दे रहा अपना वहाँ तो ऐसे बर्बाद करके रखा है। तो मच बिफोर आई अज्यूम, मतलब ये मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी आया हूँ, तो मैं मेचुका के बारे में बता देता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट, इट्स 3500 स्क्वायर किलोमीटर एंड वन ऑफ द रिमोटेस्ट डिस्ट्रिक्ट आज का डेट में, सबसे रिमोट हमारा डिस्ट्रिक्ट है। अभी आपका तो ईस्टर्न जो आपका TCL जो बता रहा है, ये तो उस जमाना में प्रॉब्लम था, अब तो बहुत अच्छा है। मैं लॉन्गडिंग से इधर तो मुश्किल से 2 घंटे आधा में पहुंच जाऊंगा, पूरा 3 डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाता है। मेरे वहां से एक सर्कल हेडक्वार्टर से दूसरा सर्कल हेडक्वार्टर आज मुझे 7 घंटा लगता है, ये सिचुएशन। एंड अनलाइक अदर डिस्ट्रिक्ट विच इज ह्यूज इन एरिया, वो कंसंट्रेशन एक जगह, हमारा वहाँ के गांव दूर दूर एकदम कोने कोने में है। एक गांव से दूसरा गांव जाने में मुझे समय बहुत लग जाता है। तो ऐसा सिचुएशन में भी मैंने क्लब अप करने शुरू कर दिया, मच बिफोर माई इलेक्शन, मेरा प्रीवियस टेन्योर में मैंने क्लब अप करने शुरू कर दिया। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं अपना गांव का स्कूल को मैंने बंद करा दिया अभी हाल ही में जाके। तो गांव वाला बोल रहा, अरे आप एजुकेशन मिनिस्टर बना था, सोचा कि हमारा गांव का स्कूल बहुत अच्छा बना, आप तो बंद ही कर दिया। तो मतलब जो बोलने का तात्पर्य ये है कि वी हैव टू प्रैग्मेटिक, वी हैव टू प्रैक्टिकल। मेरा है, मैं कैसे बंद करूंगा। कल वो चांगलांग में भी बोल रहा था, मेरा हिस्ट्री खत्म हो जाएगा बोल रहा है। तो आपका हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है ना, बच्चे का फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू हैव कंपैरिजन समवेयर ना, आपको तो मोल करना पड़ेगा भाई। आप देखिए, यू कैन नॉट ये हाथ में लड्डू एक हाथ में जलेबी लेके हमेशा घूम नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा ना, किस चीज़ में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज वेयर सम कहीं ना कहीं आपको कुछ खोना पड़ेगा पाने के लिए। तो ये चीज़ को तो आपको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। एट द ग्रास रूट लेवल देयर ऑलवेज बी प्रॉब्लम। गाँव में जैसे आप बंद करने जाएगा तो गाँव वाला तो रेजिस्ट करेगा करेगा। इट माइट बी फॉर मेनी रीजन्स। वन रीजन है कुछ सेंस है कि अरे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बंद हो जाएगा, कल को मेंटेनेंस का पैसा आना है तो मेरा जो थोड़ा सा पिक्यूनरी बेनिफिट वो बंद हो जाएगा। So these are very small vested interests which we need to overcome, and our representative, right from the elected representative to the CBOs to the पंचायत leaders to और जो आपके गांव में जो भी एक्टिव काम करता है सोसाइटी के लिए, उनका रोल है कि आप किस तरीके से समझाता है।
क्योंकि हम जो करने जा रहे हैं वो तो ऑब्वियसली इट्स द लार्जर इंटरेस्ट। ऐसा कोई नहीं कि सरकार जबरदस्ती बंद कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसको सोच के मैं इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरा डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट में आज के डेट में मैंने क्लब अप करा कि we have only around 12 to 13 schools, including the higher secondary, secondary, primary, upper primary, सब मिला के। तो उसमें अभी हमारा क्या है कि ऑलरेडी उसमें और हमारा जैसे इंटरवेंशन, जैसे लॉकडाउन साहब भी बोल रहा था कि डिपार्टमेंट से कुछ भी नहीं मिला, तो डिपार्टमेंट से हमको भी कुछ भी नहीं मिला, लेकिन कुछ चीज है जैसे वो आरोप गए, उसको किस तरीके से कन्वर्जेंस मॉडल में और जैसे कहाँ से क्या सोर्सेज है। तो मैंने पायलट प्रोजेक्ट में वहाँ में एक स्कूल निकल के टू द रिमोटेस्ट स्कूल व्हिच इज ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर, वहाँ पहुँचने में आपको आलो से पहुँचने में डीसी साहब को मालूम होगा दैट स्कूल आपको लगेगा कम से कम 9 घंटे वहाँ तक पहुँचना। वहाँ पे मैंने शुरू किया। तो दैट स्कूल है ओनली 19 स्टूडेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं वो एनजीओ को बुलाया, एनजीओ जब ने काम शुरू करके विदिन अ ईयर 94 स्टूडेंट्स उसमें एनरोलमेंट आ गए। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज तो आसपास के जो प्राइवेट स्कूल्स के भी बच्चे वहाँ पे आके एनरोलमेंट करने लगे। तो कैपेसिटी इज ओनली 100, फिर भी कैपिंग तो 100 है, फिर भी अभी 104 एंड मोर वांट्स टू टेक एडमिशन देयर। तो हमने 104 में ही कैपिंग करके रख दिया। एंड सिमिलरली वी हैव टेकन अप 5 मोर स्कूल्स इन द सेम मॉडल। तो अभी जहाँ वो शुरू हो गया तो वहाँ में भी अभी देयर सी ऑफ चेंज है ना, बच्चों में, बिहेवियर में, एकेडमिक में। तो मेरा जस्ट बोलने का मतलब ये कि ये चीज़ भी हम कर सकते हैं। तो एनजीओ को इन्वॉल्व करें। एनजीओ नहीं, उसमें हमारा वहाँ में एनजीओ है गवर्नमेंट का तरफ से, जैसे आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस में वो आपको राशन वाशन का जो भी मिलता है, यूनिफॉर्म का मिलता है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मैं अपना सोर्स से कुछ कर रहा हूँ, इसके बाद फिर एनजीओ के जैसे CSR के थ्रू से कर रहा है, वे एंगेजिंग द आर्मी पर्सनल, उनका सद्भावना प्रोजेक्ट से भी कुछ करा रहा है। एंड एट द सेम टाइम हमारा जैसे CSR फंड से भी कुछ करा रहा है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द कम्युनिटीज आर पार्टिसिपेटिंग इन। इनिशियली बहुत रेजिस्ट किया उन्होंने, अरे आएगा तो एनजीओ आएगा तो पैसा खा के चला जाएगा। एंड द सेकंड थिंग जैसे कि अरे एनजीओ तो हमारा अपना लोकल एनजीओ भी है, हम भी चला सकता है। तो स्कूल को चलाना कोई ऐसा लोकल एनजीओ का काम है, उसमें एक्सपर्टीज चाहिए। तो नाउ आफ्टर सीइंग दिस, नाउ दे आस्किंग कि हमारा यहाँ भी इनको लेके आओ, हमारा यहाँ भी इनको दो। एंड वी हैव ऑलरेडी अभी एक टीचर्स ट्रेनिंग एक इंस्टीट्यूट भी शुरू कर दिया अंडर द सेम पैटर्न, वो एनजीओ वाला ही करेगा, जहाँ में हमारा सारा डिस्ट्रिक्ट का जितना भी टीचर को भी ट्रेन करेगा। अब स्कूल खोल देने से नहीं होता, तो क्वालिटी ऑफ टीचर इसको किस तरीके से हमको उसको फिर ट्रेन करके तो बच्चों को पढ़ाना है। तो मैं एक कहानी इसलिए आप लोगों को बता रहा, सोच रहा हूँ कि अपना जगह का बहुत एकदम बहुत ये बोलने का मतलब ये है कि कमिटमेंट होगा तो बहुत कुछ कर सकता है। रेजिस्टेंस जरूर होगा, हमारा वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन ये बहुत रेजिस्टेंस है। प्लस आपका फिर भी सुविधा है, ये स्कूल बंद भी हो गया तो इसके यहाँ का बच्चा इधर सामने में जाके पढ़ सकता है। लेकिन मेरा जो एक गाँव और दूसरा गाँव बहुत दूर है, मैं चुका कोई गया हुआ तो पता होगा। अब तो आप गए ना तो कितना दूर है, कितना दुर्गम है, बहुत सबसे तकलीफ वाला डिस्ट्रिक्ट है। बहुत सुंदर है बट बहुत दूर। शुद्धता से एजुकेशन तो बढ़ेगा नहीं सर बहुत दूर है। हाँ, तो दैट्स व्हाट आप मणिगांव तरफ गया नहीं, आप जस्ट मणिगांव नहीं गए सर, हम देयर इज द हार्ड ऑफ ऐसे हम बॉर्डर तक गए थे पर इट्स वेरी फार। एंड वो आपका मणिगांव उस तरफ चला जाता है व्हिच इज मच बिगर एरिया। सर हम लोग जा नहीं पाए थे क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइम लगना था। तो मतलब मेरा डिस्ट्रिक्ट में चुका है, थोड़ा सा देखने लायक सुनने लायक जगह है, बाकी बहुत बुरा हाल है। तो मेरा कहानी वही था कि इस तरीके से जब इतना रिमोट जगह में हम लोग भी इस तरीके से एजुकेशन का जो सिनेरियो को चेंज करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, तो वी ऑल कैन डू टुगेदर ना। तो उसको इस तरीके से मेरा तरफ से वही है। जैसे और बहुत सारा जैसे हम लोगों का इश्यूज़ है ऑडिटोरियम का, क्या क्या जो छोट फूट जो इश्यूज़ है, उसको तो अभी जैसे हम लोग अभी जाएंगे, फंड का पोजीशन क्या है, क्योंकि वी हैव टू ट्रैवल टू ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट नाउ। तो आपका जिससे रिक्वेस्ट आ रहा है, इससे तो लगता है कि हमको कम से कम 10,000 करोड़ लोगों से भी सबका भरपाई नहीं होगा। तो उसमें हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ पे कितना क्या है, उसके मुताबिक हम लोग करेंगे। और साइंस कॉमर्स स्ट्रीम का जो बात बता रहा है उसके बारे में एक बात बता देता हूँ। ऑलरेडी 17 स्कूल्स में साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम अपग्रेड कर चुका है, और ये स्कूल्स अभी भी साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम फंक्शनल नहीं है। कब से? 2007 से
ना, ऐसा है कुछ बहुत पहले से मेरे को, हमारे पास टीचर ही नहीं है अभी, सब्जेक्ट टीचर नहीं है, पोस्ट क्रिएशन नहीं हुआ। तो मैंने इसलिए डिपार्टमेंट की भी बोला कि अब की बार से जब तक हमारे पास मैन पावर नहीं होगा, हम कोई ऐसा अपग्रेडेशन या ऐसे साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब मेरे हायर सेकेंडरी स्कूल, मेरे अपने हायर सेकेंडरी स्कूल, दोन हायर सेकेंडरी स्कूल में चुका पूरा एंटायर डिस्ट्रिक्ट का, उसमें भी साइंस एंड कॉमर्स में मैं बनते ही मेमोरेंडम आ गया, बोला हमारे यहाँ साइंस एंड कॉमर्स अब तो मंत्री बन गया। मैंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया उनको। तो मैंने ये बोला कि जब हम आपको, अगर चलो आपका ये आपको खुश करने के लिए हम बना तो देगा, लेकिन जब मैं टीचर नहीं दे पाऊंगा तो फिर मतलब क्या है? तो इट हैज टू बी अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। तो मेरा बोलने का मतलब वही है। तो इसलिए जहाँ तक सकता है हम लोग को वी हैव टू वॉक द टॉक, बट उसके साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी होना पड़ेगा। हम लोग, जैसे मैं कल भी बोल रहा था, अभी आप लोग को लगा कि मंत्री आ गए, एडवाइजर आ गए, पूरा टीम आ गया, तो जादू का छड़ी लेके आ गया होगा, सारा एजुकेशन सिस्टम चांगलांग का तो ठीक कर दिया, अभी हमारा ठीक होगा, फिर लोंगिंग ठीक होके सारा अरुणाचल ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। तो करेंगे, कोशिश कर रहा है। तो आप लोगों का सपोर्ट मांगने के लिए मैं वो कल भी वहाँ बोला, मैं आप लोग हमसे कुछ मत मांगे, हम आपसे मांगने के लिए आए। जब पर हम लोग आपका सपोर्ट मांगने के लिए आए। आपका जो रैशनलाइजेशन का भी बात आ रहा है, जैसे अभी हमारे एमएलए साहब ने बोला, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट एंड द मोस्ट क्रिटिकल जो हमारा प्रॉब्लम है, जो टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग है। जैसे अभी यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, नो वन वांट्स टू कम टू तिरापन चांगलांग, वो एक मेंटल ब्लॉकेट आ गया। तो मेंटल ब्लॉकेट आ गया कि तिराप चांगलांग, लेकिन अभी हम जाके देखते हैं तो ये ईस्टर्न साइड इज वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट वेल कनेक्टेड प्लेस। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोलो, आपका रोड का भी बोलो। अभी प्रॉब्लम जैसे मेरे वहाँ समझ में आता है कि वहाँ पे मेचुका नहीं जाएगा, भाई काला पानी का सजा हो गया वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो क्यों जाना है? दैट मेंटल ब्लॉकेज को भी तो किस तरीके से क्लियर करना है, और उस पर भी हम लोग टोल्ड कि अभी इसका जो रैशनलाइजेशन का, जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारा, जैसे लास्ट टाइम भी मीटिंग में बोला, तो स्क्वायरली दे ब्लेम द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। आप लोग ही लिख देता है, नोट लिख देता है, इसको मत भेजो, इसको रखो, इसको निकालो, तो आप लोगों की वजह से नहीं हो पाता है। एवरीवन वांट्स टू सर्व इन द सॉफ्ट बेल्ट, और कोई बोलता है कि मंत्री एमएलए बड़ा बड़ा ऑफिसर का ही वाइफ लोग टीचर है, तो दे वांट टू स्टे इन ईटानगर। तो इस चीज़ को लेके हम लोगों ने अभी इस पर बहुत सीरियस जो थॉट चल रहा है कि किस तरीके से ऐसा हम लोग एक सिस्टम उसको बनाएंगे कि ताकि इस पे दोबारा ऐसा कोई इशू ना हो। क्योंकि मैं लास्ट कल भी बोल रहा था कि हमारा टीचर्स का कमी बोल के नहीं है, ऐसा भी नहीं कि बहुत बुरा हाल नहीं है। वी हैव गुड नंबर्स ऑफ टीचर इन आवर डिपार्टमेंट, बट कंसंट्रेशन उल्टा सीधा है। जहाँ पे होना है वहाँ नहीं है, जहाँ नहीं होना वहाँ भर भर के, कोई टीचर को तो क्लास लेने का भी मौका नहीं मिलता, सुना है ऐसे भी है। तो इसको किस तरीके से करके, तो इसलिए हमने चिंतन शिविर में एमएलए एंड मिनिस्टर्स को भी बुलाया, तो उसको और सीरियसनेस देने के लिए मैंने सीएम साहब को बोला आप शेयर करेगा मीटिंग को, डीसीएम को कोई शेयर कर दिया करके, उसमें हम लोग ने यही बोला कि जब किसी को बुलाया था सिर्फ एक ही आया था पंचायत की तरफ से। तो ये है कि जब ट्रांसफर पोस्टिंग होता है उसमें आप लोग का दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वही सेम बैक टू स्क्वायर वन। तो फिर हमारा वही होगा, जहाँ टीचर है वहाँ में भर भर के है, जहाँ नहीं है वहाँ पे नहीं होगा। तो उसको हम लोग, एंड इवन आई थॉट कि ये पॉलिसी से होने वाला नहीं है, तो इसको हम लोग वी विल ट्राई टू ब्रिंग एन एक्ट ट्रांसफर पोस्टिंग का, ताकि हमको कोई लीगली चैलेंज भी नहीं कर पाएगा। तो उस तरीके से होगा तो हमारा एमएलए मंत्री भी बोल सकेगा भाई हम कुछ नहीं कर सकते, तो एक्ट में है तो उसके मुताबिक, तो हमारे लिए भी एक सुविधा हो जाता है कि बचने के लिए एक रास्ता भी हो जाता है। तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा तरफ से ये है कि आप लोगों को, हम लोगों का जो यहाँ पे पूरा जो डिस्ट्रिक्ट का टूर करने का जो मतलब तो आप लोगों को समझा दिया। आप जो भी लीव जो भी अभी जो एक जो भी छूट गया है किस तरीके से है, वो सबको भी आप लोग पूरा फाइनल करके दे दीजिए। तो उसके बाद we'll do a thorough follow-up exercise of entire tour, sir. We'll send a copy separately to every district. और नेक्स्ट टाइम में फिर हम लोग ऐसा ये नहीं, हम वहाँ से ऑफिसर्स भी भेजेंगे फिर पूछताछ करने के लिए, यहाँ पे डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स भी भेजेंगे यहाँ पे कि फिर फाइनल अगर कोई जरूरत पड़ा तो फॉलोअप के लिए हम कोई ऑफिसर भी भेजेंगे आपका यहाँ से, कोई इशू होगा। नहीं तो बेटा आराम से उधर चाय पानी पिया, इसके बाद चला जाता है, भूल जाता है क्या डिस्कस हुआ, है ना। It has been
काइंड ऑफ कन्वेंशन होनी, तो उस पर कोई फॉलो अप नहीं होता है, उस पर कोई प्रैक्टिकल उस पर कोई डिस्कशन नहीं चलता है। तो उसको लेके तो अभी ज़्यादा अभी लंबा नहीं होता है, तो मैं डीसी मैडम और जितना भी हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी लोग हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, आप लोगों ने हम लोगों का यहाँ पे अरेंजमेंट कर दिया है, CBOs those have participated in this, आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग तो जिस डिपार्टमेंट के लोग हैं ना, मेन जो आप लोग ग्रास रूट में रहता है, आप लोगों का रोल है। आप लोगों को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच आना पड़ेगा। जो भी हम लोग सरकार के लेवल में डिसीजन लेता है उसको आप लोग सपोर्ट करना पड़ेगा। कई लोग जो कुछ को समझ में नहीं आता है, कुछ है समझ के भी ना समझ बनता है ना, उसको तो आप क्या कर सकते हैं। जो सोने की एक्टिंग कर रहा है, यू कैन नॉट वेक हिम अप, लेकिन जो कहीं होता है जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, उसको आप जरूर समझाइएगा। यू फाइंड इन सोसाइटी एज सर्टेन पीपल, वो सब कुछ पता है उसको कि ये अच्छा चीज़ होना है, लेकिन हमको अपोज करना है। तो उस तरीका का वैसे को आप जब मेजोरिटी अच्छा सोच रहे हैं तो उसको साइड लाइन करने में कोई इशू नहीं है। उसको चीज़ को लेके तो इतना करके देन आई वुड लाइक टू थैंक डीसी मैडम और DDSC और जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हम लोग को यहाँ पे वेलकम करने के लिए, अरेंज करने के लिए। तो उम्मीद करता है कि आप लोगों का सपोर्ट से जो हम लोगों का एक जो एफर्ट है और सरकार का जो एफर्ट है कि एजुकेशन सिस्टम जो थोड़ा डिरेल हो गया, उसको ट्रैक पे कैसे लेके आएगा और नया इनोवेटिव कुछ चीज़ है तो उसको भी कैसे हम लोग उसको कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग पूरा फुल कोशिश करेंगे। बट एट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, उतना करके मैं अपना बात करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।